Firstly, I see it as a victory of the farmers, but it is still a partial victory because the government had refused for a discussion on the floor of the House with the opposition leaders wanting to bring about the entire truth behind the protest. 700 farmers have died. There is no apology forthcoming. There is no resignation of the man whose son was behind the Lakhimpur Kheri incident. There is also no talk of compensation, no talk of MSP. So this is a partial victory for our farmers, and I'm hoping the farmers and the opposition will continue to raise the voices and ensure that the government is answerable. मेरा कहना ये है कि इतनी ये जो सब्जेक्ट है इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको जिस तरह से पास कराया गया, अभी तो पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतने साल मुझे यहाँ हो गए, ये पहली बार इस तरह का वातावरण मैं देख रही हूँ कि ऑपोजिशन के लीडर बोल रहे थे, मंत्री जी बीच में खड़े होकर बोलने लगे, उसके बीच में हंगामा में बिल पास कर दिया। ये क्या है? मुझे तो लगता है कि अभी एक स्पेशल बिल पास कराना चाहिए कि पार्लियामेंट के सुरक्षा के लिए बिल। ये कुछ मतलब ही नहीं होता है। छोटी पार्टीज हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, और इतना जो नुकसान हुआ है, इतने लोग जो मरे हैं, इतने लोगों ने धरने पे जो बैठे हैं, और जो अभी पैदाइश हुई है खान पान की चीजें, धान हो, गेहूं हो, सब्जियां हो, जिस तरह से दामें बढ़ रही हैं, ये सब चीजों को लेकर बात करना चाहिए था। तो फार्मर्स तो काम पे गए नहीं, उत्पादन कुछ हुआ नहीं। कर क्या रही है सरकार? हवा में हम लोग खाना खाएंगे क्या? पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, तो जिएंगे कैसे? Problem is we want a discussion. A discussion is important. But without discussion, they just pass bills, which is their way of doing things. They have done it. So what can I say about it? But sir, it will also be introduced in Rajya Sabha today. The reports are coming in. How do you see this? Earlier also, in the same way, discussions were not held as claimed by the opposition parties. How do you see this type of? Unfortunately, it is not the parliamentary way of doing things. We have lost our motives. Tragedy is, Parliament no longer is the same as it used to be. Today, bills are passed without any discussion, and that is why this bill has been taken back, repealed. Why was it repealed? If the government had listened to the opposition, had discussed, none of this would have happened. And 700 farmers wouldn't have died. I hope they learn lessons from this. We're not against, normal working. We want Parliament to function. Parliament is for debate, discussion, so that we can do something good for the country. When there is no discussion, well, you see what happens. So why? What do you think, sir? Why the discussion is not? Ask the government. I don't know. I don't know what they fear. I don't know. Sir, last question is to you, sir. It was also sometime being debated that after these three farm laws, the next agenda will be repeal of Article 370 and. If they want to win the people's hearts, that is the only way. They will never win the hearts of people by coercion, by force. They will never win. They will lose. And nation will have to pay a very huge price. So do you demand that these? Yes, that should also be taken. लगातार उन्होंने ये कहा किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिरकार जिस समय किसान विरोध कर रहे थे, जिस समय किसानों ने आंदोलन छेड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया है तो वो किसानों के पक्ष में कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। वहीं विपक्ष को कम से कम मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। और 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा?
समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों को और देश को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहिए। अगली बार जनता योग्य सरकार चुनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या अच्छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी। आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनका? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है। उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था। और क्या नोटबंदी के परिणाम वही आए जो भारतीय जनता पार्टी उस समय बता रही थी। अखिलेश जी, एमएसपी पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? एमएसपी पे कानून होना चाहिए और कम से कम किसानों की मदद के लिए एमएसपी के लिए कानून लेकर के सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इसी तरह के खिलवाड़ कर रही है नौजवानों के भविष्य के साथ। और ये पहली बार पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, पहली बार परीक्षा रद्द नहीं हो रही है, ये कई बार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, उनको रोजगार नहीं देना चाहती। कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। स्टार्ट हो गया रात देखिए, ये विदाउट डिस्कशन पास हो गया है, इसमें कोई अर्थ नहीं है कि हम तो वेलकम कर रहे हैं जो केसेस, जो कानून वापस लिए है उसका तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किस ढंग से वो करके डिस्कशन को रोक रहे हैं उसके लिए हमको निराश है, क्योंकि हम चाहते हैं सबकी चीजों के ऊपर डिस्कशन हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल करा, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया था भाई किसान और सरकार अपने आप कर लेगी, तो हुआ ना पार्लियामेंट। सरकार ने करी थी आपकी मांग पे ही जो प्रधानमंत्री ने एक सवाल है, क्या है? जब ऐलान किया आप लोग कह रहे थे लिखित में होगा तब मानेंगे, आज लिखित में भी अरे लोकसभा हो तो से गया, पारित हो मान तो गए और क्या संतुष्ट करो। है आप? संतुष्ट है हो तो गया, एक बीमारी थी उसका, बीमारी कट गई। तो आज का जश्न मनेगा कि हाँ, 750 लोग शहीद हो गए, हमारे जश्न मनाएंगे हम। 750 लोग जिसका मर जाओ जश्न मनाता है। लेकिन बिल वापसी की डिमांड मानते हैं कि बड़ी अरे बीमारी है, एमएसपी की भी बीमारी है, उनका बलिदान रंग ला रहा है, उनके लिए तो कुछ कहेंगे? उनका तो धन्यवाद है। ये पूरी जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसने कहा कि आंदोलन इन तक खत्म हो रहा? ये सरकार, ये सरकार हमारे ऊपर, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी हम पे ये इल्जाम लगाते हैं कि हम सदन चलने नहीं देते, सदन चलने नहीं देते। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। इसका मतलब यह है
किसानों की दबाव में आके सरकार मान तो लिए हैं ये फार्म बिल की वापसी, लेकिन दिल से नहीं माने, मन से नहीं माने। उनकी मन की बात कुछ अलग है, दिखाने की बात कुछ अलग है। हाथी की दांत जैसा होते हैं, दिखाने का कुछ और चबाने का कुछ। ये सरकार भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। ये जो फार्म लॉस को रिपील किया गया उसमें एक वर्ड लिखा गया, दो चीजें हैं में कि एक तो ये कि एक किसानों का छोटा सा तबका है इस कानून के खिलाफ था, दूसरा आजादी का अमृत। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहाँ पर तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर बनाकर आप कहाँ के आजादी के अमरूद की बात कर रहे हैं? आप तो तौहीन कर रहे हैं उन जंग आजादी के मुजाहिदीन की। और अगर छोटा सा तबका खिलाफ है तो भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि CAA का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए CAA कानून को।